हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be beginning a new chapter of physics, that is the chapter number 4 of NCERT, with the title as Moving Charges and Magnetism. Moving Charges and Magnetism. It's an interesting chapter as well as an important chapter for your बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड एंड फ्रॉम वेयर डज इट हैव इट्स ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. फिर बात करेंगे उसके डायरेक्शन के बारे में, दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड लेटर ऑन we'll talk about that how can you determine the strength of a magnetic field at any point close to a body that is acting as the source of the particular magnetic field. So let us begin with the concept of magnetic field. So first of all let us try to understand its origin, कि भाई magnetic field का origin actually में कहाँ से है. What is the source of magnetism in our concept of magnetism. But before we move on, you have to remember one particular thing, कि बच्चों आपके सिलेबस के अंदर जिस हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, इट इज़ दैट मैग्नेटिज्म विच हैड ओरिजिनेटेड आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ड्यू टू दी मूविंग चार्जेस. जो मैग्नेटिज्म पैदा होती है ड्यू टू मूविंग चार्जेस एंड विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी बात हम क्लास 12 के अंदर करते हैं. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, विच इज़ द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर. उसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसी की बात हम क्लास 12 के अंदर करते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड दैट वॉज actually which originated from electricity was first of all discovered by a scientist named as Hans Ørsted. Okay, and the experiment by which he discovered that was known as Ørsted experiment. Ørsted's experiment. This was the experiment by which he found out the relationship between moving charges, or you may say electricity, and this magnetic field. So first of all we'll be studying the origin of electromagnetism, that is the relationship between electricity and magnetism. So he was the scientist who by doing this Ørsted's experiment gave us the relationship between magnetic field and electricity. So now let us try to understand what did he actually do. So what he did was he took a particular circuit. What he did was उन्होंने एक सर्किट बनाया in which he connected, let me say this is my any conductor. This was a conductor and he connected this particular conductor to a battery which provided the sufficient EMF and to this particular conductor. Okay, so this was a circuit. In this circuit now what he did was कि जहाँ पर उन्होंने अपना सर्किट रखा उसके जस्ट नीचे, ये आप ये देखो जैसे ये हमने सर्किट रखा है उसी तरह से उन्होंने रखा, और इस सर्किट के जस्ट नीचे ही पुट अ नीडल बिलो इट, एन आयरन नीडल. ओके, उन्होंने पहले ही सर्किट बनाया एंड जस्ट बिलो दिस सर्किट, okay, he raised this circuit and below this circuit he installed a needle, an iron needle just below it. Okay, so now what he observed was that, let me say this is the key of this particular circuit. When he closed the key, that is when current began to flow across this particular conductor, so the needle deflected from its initial position. Initial position में आप ये मानिए कि मेरे पास needle है, इसके नीचे रखी हुई है. Let me say this is my needle
this was my needle initially kept below this particular circuit, and when I passed the current through this circuit, so what was observed was that this particular needle changed its direction. This particular needle changed its direction. It deflected. Okay, it deflected from its initial position. Now when Oersted saw this, he observed this experiment and he thought over that it's an iron needle, and you know very well that an iron and a substance which is made up of iron especially, okay, it only gets deflected when it comes in the presence of some sort of magnetic field. यानी कि वो ये बात समझे कि when the current is passed across a conductor, there is some sort of magnetic field which is produced due to this current flowing through this conductor, due to which the iron needle is being deflected from its initial position. आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास कोई भी एक आयरन की नीडल है, ओके, और यू में से आयरन नेल जिसको हम कील बोलते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है एंड यू हैव अ मैग्नेट विद यू, सो यू विल ऑब्जर्व कि इस आयरन नीडल को जब हम इस मैग्नेट के पास लाएंगे, सो द नीडल विल इटसेल्फ at a particular distance between the two, it will itself come and get attached with this particular magnet, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है अपनी इनिशियल पोजीशन से. सो वही उन्होंने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि मेरे पास आसपास कोई और मैग्नेट तो रखा हुआ है नहीं जिसकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही हो. सो this he observed, then when current is passed through a conductor, it produces some sort of magnetic field around it, due to which an iron needle that was kept just below this particular conductor was deflected from its initial position. Okay, so first of all, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने जो करंट का डायरेक्शन माना है, that was from this side. Okay, I had considered the flow of current in this particular direction, and let me say that इस निडल का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है. Okay, that is this point of this needle is showing me the north and this is showing me the south. So what you observed was in the very first case, जब उन्होंने करंट को इस डायरेक्शन में पास किया, so the needle deflected in this manner, that is north came towards the left hand side and south went towards the right hand side. Now what he did कि उन्होंने इस बैटरी को, जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनको रीअरेंज कर दिया. दैट इज ही ब्रॉट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन दिस साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑन दिस पर्टिकुलर साइड. एंड देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज कि इस बार ये नीडल डिफ्लेक्ट तो हुई, बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन वाज अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल वाज अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन. यानी कि इस बार क्या हुआ, इस बार ये नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई. इसमें कब हुई, व्हेन आई हैड चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि मैंने टर्मिनल्स चेंज कर दिए हैं. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल राइट नाउ एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस वाज व्हाट ओयरस्टेड डिड, एंड दीज ऑब्जर्वेशंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट लेड ओयरस्टेड टू इंटरप्रेट दैट देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर which deflected this particular magnetic field. Okay, so we may write down now that an electric field, an electric current produces magnetic field, produces magnetic effect लिख लेते हैं, effect in the space around the conductor, in the space around the conductor. This was the final interpretation of Oersted after doing this Oersted's experiment, in the space around the conductor. So this was actually the origin of electromagnetism. That was कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होती है, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय ओयरस्टेड इन हिज एक्सपेरिमेंट. ओके, सो नाउ यू सॉ दैट एन इलेक्ट्रिक वायर और एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैरिंग सम चार्ज
is the source of magnetic field. So I expect that this Oersted experiment and its interpretation is clear to you. ये आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए. एग्जामिनेशंस में ये नहीं आता, बट यू मस्ट नो the origin of the topic about which we'll be talking about in this chapter as well as in the upcoming chapter. Okay, so now let's talk about magnetic field or the strength of magnetic field. Okay, so magnetic field को आप कैसे डिफाइन करोगे? अब magnetic field क्या हुआ? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज द रीजन अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. सिमिलर इज द केस विद द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड भी एक स्पेस है, एक रीजन है. सो इफ यू वांट टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द region or space around a current carrying conductor, within which its influence can be felt. Its influence can be felt, उसको हम बोलते हैं बच्चों magnetic field or the strength of magnetic field. So I hope this term magnetic field is clear to you कि भाई magnetic field क्या होता है. magnetic field वो region है, वो space है किसी भी कंडक्टर के आसपास जहाँ पर हम उसके इफेक्ट को फील कर पाएँ. क्योंकि ये जो नीडल है, जब हमने इसको इसके नीचे रखा, जस्ट बिलो इट व्हेन आई केप्ट, देन इट वाज बीइंग डिफ्लेक्टेड. अगर मैं इस नीडल को उठा करके यहाँ पर रख दूँ इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफ्लेक्ट वहाँ पर होगी. तो ये एक रीजन होता है अराउंड अ कंडक्टर वेयर द इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, और उसी को हम बोलते हैं बच्चों द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस टर्म के बारे में और डिटेलिंग में हम आपसे बाद में बात करेंगे. अभी सिर्फ आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, सो आप आगे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो. ओके, सो नाउ वी हैड टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन, वी हैड टॉक्ड अबाउट द पर्टिकुलर टर्म. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. Okay, now we'll be discussing the direction of magnetic lines of force. Direction of magnetic lines of force, which is again a very simple concept, and you can even relate this same concept with the direction of electric lines of force. Okay. So to determine the direction of magnetic lines of force, what we do is that we take a cardboard sheet. हम एक कार्डबोर्ड की शीट लेते हैं और उसके ऊपर कुछ आयरन की छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर. We spread some small iron fillings over that particular cardboard, और हम उस कार्डबोर्ड के जस्ट सेंटर में से पास करते हैं एक वायर विच इज़ कैरिंग करंट. ठीक है, हमने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर को पास किया है थ्रू अ कार्डबोर्ड हैविंग आयरन फिलिंग्स स्प्रेड ओवर दैट पर्टिकुलर कार्डबोर्ड. ओके, सो जब हमने ऐसा किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमने आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करी थी उस कार्डबोर्ड के ऊपर, लेट मी से दिस वाज द कार्डबोर्ड, सो द आयरन फिलिंग्स दैट आई हैड स्प्रेड ओवर दिस कार्डबोर्ड, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक वायर थ्रू दिस कार्डबोर्ड which was carrying current. Okay, it was observed that these iron flings took a particular shape over this cardboard. That is, they arranged themselves in form of concentric circles. इन्होंने अपने आप को concentric circles के फॉर्म में अरेंज कर लिया था सारे आयरन फिलिंग्स ने. और एक बात ऑब्जर्व करने वाली थी कि जो concentric circles थे नियर द वायर, they were close to each other. ये थोड़ा कार्डबोर्ड को बड़ा कर लेते हैं. So the iron flings, it was observed that the pattern or the manner in which they arranged themselves, it was observed that near the wire the difference between the two concentric circles was small as compared to the distance between two concentric circle far away from this particular wire. आप देख रहे होगे इस डायग्राम के अंदर कि जो सर्कल्स वायर के जस्ट पास में हैं उनके बीच में जो दूरी है
that is relatively less as compared to the distance over these two circles. Okay, so it was a matter of observation, and that actually meant that the magnetic field near these wire was strong as compared to the magnetic field which is at a quite larger distance from the wire. ठीक है, इसका मतलब ये था कि भाई वायर के आसपास जो सर्कल्स फॉर्म हुए आयरन फ्लिंक्स के, उसका मतलब ये था कि इनके बीच की दूरी कम थी क्योंकि यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, और ये डिस्टेंस बिटवीन दीज आयरन फ्लिंक्स went on increasing because the magnetic field was decreasing as we were moving far away from this wire. So इन दोनों बातों को हम लिख सकते हैं as the magnetic field around a current carrying straight conductor. Let me write it down. You may write it as the magnetic field around a current carrying straight wire, or you may say straight conductor consists of concentric circles, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, concentric circles of magnetic lines of force. आगे लिखना आप of magnetic lines of force lying in a plane. ये एक ऐसे प्लेन में लाई कर रही हैं, lying in a plane which is perpendicular to the current carrying conductor. आप ध्यान से देखो, सो ये मेरे पास वो प्लेन है और इस प्लेन के जस्ट ऊपर इस तरह से रखी हुई ये मेरे पास वायर है which is actually parallel to this particular cardboard. So इसका मतलब यही है, आगे लिखना consist of concentric circles lying in a plane which is perpendicular or which is at right angle to the current carrying wire or the conductor. इस लाइन को आप पूरा कर लीजिएगा. एंड इसके बारे में भी लिखना कि भाई डिस्टेंस पहले कम क्यों या फिर बढ़ क्यों रहा है. राइट डाउन दैट दिस कंडक्टर it acts as the center of magnetic lines of force. This conductor is acting as the center of magnetic lines of force. उसके बाद लिखना that these lines, ये जो lines हैं, they are crowded near the wire. They are crowded near the wire or the conductor and become further apart because the distance from the conductor increases. Okay, the reason behind this is that the magnetic field near the conductor is strong as compared to the magnetic field away from the conductor. इस बात को मैं लिखवा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि the distance between the concentric circles was less near the wire and it increased as we moved away from the wire. The reason was that the magnetic field near the conductor is stronger. Near the conductor is stronger and becomes weaker as we move away from the conductor. So I hope this concept is clear to you कि भाई ऐसा क्यों हुआ. सो अब आप ये तो समझ गए हो कि डायरेक्शन कैसी होने वाली है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर. ये तो आपने सीख लिया, बट यहाँ पर इसने ये कहीं नहीं दिखाया कि डायरेक्शन क्या होने वाली है. ये देखो सर्कल्स तो ऐसे भी घूम रहे हैं, बट अगर मैं वायर को इन्वर्ट कर दूँ या फिर वायर को जिस डायरेक्शन में पहले ये थी, लेट मी से द करंट वॉज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन अर्लियर. इस बार मैंने क्या किया, दोबारा मैंने यही कार्डबोर्ड लिया, दोबारा मैंने फिर से आयरन फिलिंग्स को स्प्रे किया इस कार्डबोर्ड के ऊपर, बट इस बार मैंने वायर को ऐसे डाला कि जो करंट का डायरेक्शन है ना वो ऐसे आए. द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी डाउनवर्ड्स. सो उस समय पर भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने अपने आप को इसी मैनर में अरेंज किया, इसी सेम मैनर में अरेंज किया. सो हम ये पता कैसे लगाएं कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है. जब करंट ऊपर जा रहा है तब भी इन नीडल्स या फिर इन आयरन फिलिंग्स का
अरेंजमेंट वही है, और जब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तब भी डायरेक्शन वही है, तब भी अरेंजमेंट वही है. सो हाउ टू बी डिटरमाइन दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सो टू हेल्प यू टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वी स्टडी राइट हैंड थंब रूल. हम पढ़ते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल को. इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल रूल है. इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस वी कंसिडर दैट द कंडक्टर विच इज कैरिंग द करंट इज बीइंग होल्ड इन आवर राइट हैंड. हम ये मानते हैं कि हमने अपने राइट हैंड में उस कंडक्टर को पकड़ रखा है, और जो हमारा थंब है, लेट मी शो यू. सो आप बच्चों ऐसे मानते हो कि आपके पास इस तरह से आपने हाथ में अपने कंडक्टर को पकड़ रखा है, ओके, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये जो आपका थंब है ये उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, ओके. सो दीज फिंगर्स, जिस तरफ ये फिंगर कर्ल्स करेंगे, ये देखो द फिंगर्स आर कर्लिंग दिस साइड नाउ. सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ये आपको दिख रहा होगा कि इस बार मेरी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है जब मेरा करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है. वेयर एज अगर मैं अपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ता हूँ, दैट इज़ कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो नीचे की तरफ है. सो उस समय पर क्या होगा, आप देखो ध्यान से, जो फिंगर के कर्ल्स हैं दैट इज़ ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी कि जब मेरे पास, मैं अपनी कंडक्टर को होल्ड करूँगा इन अ डायरेक्शन विच इज़ डाउनवर्ड्स, सो उस समय पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज. वेयर एज इफ आई होल्ड इट in the upward direction such that the current is flowing in the upward direction, so the anti-clockwise direction of my fingers will tell me that the magnetic lines of force is acting in the anti-clockwise direction. So I hope you understood the concept of right hand thumb rule. So बच्चों इस रूल के लिए आप लिखना that if the current carrying conductor is imagined to be held in the right hand, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ राइट हैंड में ही अपनी उस बात को मानना है. सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको लिखना है इसके नीचे, दिस लॉ एज इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द टिप्स ऑफ द कर्ल्ड फिंगर encircling the conductor will give the direction of the magnetic lines of force. Okay, so this is the right hand thumb rule. इसको ऐसे आप नीचे लिख लोगे ताकि आपको फ्यूचर में ये रिवाइज कर पाओ. So I hope this concept of the direction of magnetic lines of force is also clear to you. So now let's move forward and try to determine the strength of the magnetic field at any point near a current carrying wire. ठीक है, हम ये जान चुके हैं अभी तक कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं वो है किसके कारण, वो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, दैट इज़ फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर. सो अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि भाई किसी भी कंडक्टर के पास, मैंने माना है मेरे पास कंडक्टर है, ये कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग सम और द अदर मैग्नेटिक फील्ड. सो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि कुछ दूरी पर है इस पर्टिकुलर कंडक्टर से, उस पर क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैग्नीट्यूड है मेरे मैग्नेटिक फील्ड का. सो उसको हम पढ़ते हैं बच्चों आगे इन बायोट-सेवर्ट्स लॉ. सो नाउ आई एम टर्निंग द पेज सो दैट वी कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ पर्टिकुलर कंडक्टर. सो नाउ टू टेल यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point near a current carrying conductor, there was a scientist Biot-Savart who gave a Biot-Savart's law, and this law helped us to find out the strength of magnetic field at a point near a current carrying conductor. So आइए समझते हैं कि ये लॉ क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं. Okay, and how can we determine the strength of magnetic field at any point near a current carrying wire? बस बच्चों एक बात को समझ के चलना कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसके आगे आने वाला जो एक और चैप्टर है रिलेटेड टू द सेम टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर्स हैं तो बहुत ही सिंपल,
ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिक्स करते हैं। ओके, क्योंकि आप और भी कई लॉज पढ़ोगे जो कि आपको बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ कंडक्टर। बट आपको हर बार ये समझते हुए चलना है कि हम एक स्पेसिफिक लॉ एक स्पेसिफिक तरह के कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है? ये एक जनरल लॉ है विच टेल्स अस कि अगर कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई भी, सो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो बताता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो इट्स अ जनरल लॉ। सो ये आपके माइंड में हमेशा हमेशा होना चाहिए। और बस ध्यान ये रखो कि ये हमें बता क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंड है और क्या क्या चीज़ें कंटेंड नहीं है। ओके, सो बायोट-सेवर्ट्स लॉ बेसिकली क्या करेगा, मैंने माना कि मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, या फिर आप मान सकते हो कोई भी एक वायर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक वायर है सिंपली, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। लेट मी से आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर। सो अब हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट at a particular point near this conductor I will imagine a small element of this wire। मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करूँगा इस वायर का। अब मैंने स्मॉल एलिमेंट ही क्यों लिया, मैंने स्मॉल एलिमेंट इसलिए लिया बच्चों क्योंकि ये जनरल लॉ है। ओके, इट्स अ जनरल लॉ। ये हमें बता रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर। अब चाहे वो कंडक्टर स्ट्रेट हो, सर्कल्ड हो, तो वो जैसा भी हो वो हम डिटरमाइन कर लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए निकाल रहा हूँ। ओके, अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट। ओके, लेट मी से दिस स्मॉल एलिमेंट इज ए बी, क्योंकि देखो एलिमेंट चाहे ये हो या फिर पूरी वायर हो, जो करंट आई है वो हर एक एलिमेंट में से इक्वली फ्लो कर रहा होगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के लिए हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर दिस पर्टिकुलर वायर। सो मैंने माना कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट मी सी द पॉइंट इज पी, द पॉइंट इज पी, और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है कि भाई क्या स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ दिस वायर ए बी, ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी। सो फॉर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि बच्चों इसको हम बहुत ही छोटा मानते हैं। ओके, ओवर हियर आई हैड शोन यू अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। ओके, बट ये एलिमेंट इतना छोटा होता है कि जो ये चेंज हो रहा है ना शेप में, आप देख रहे हो ऐसे थोड़ा स्लैंट में जा रहा है। सो ये क्या होता है, ये इतना छोटा होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाई देगा। ओके, द एलिमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। चलो मैं आपसे ये दिखाता हूँ, आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ, ये वाला। सो आप अगर मैं इस पूरे बचे हुए को इरेज कर दूँ और सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट को रखूँ तो आपको दिखेगी एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, आपको दिखेगी एक स्ट्रेट लाइन। सो वही हमने यहाँ पर भी किया, हमने एक बहुत ही छोटा एलिमेंट माना, तो जो हमने छोटा एलिमेंट माना है वो हमें एक स्ट्रेट वायर जैसी दिखेगी अब। ओके, अब वो कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं होगी, अब वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगी। ओके, सो नाउ व्हेन आई हैव अ स्ट्रेट वायर आई कैन जॉइन दिस पॉइंट P एंड दिस करंट एलिमेंट बाय अ लाइन। ओके, चाहे मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ या फिर यहाँ से ज्वाइन करूँ, बात फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई हैड जॉइंड दिस पॉइंट P विद दिस करंट एलिमेंट, लेट मी से P, सो दैट आई कुड टेल द डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड दिस पॉइंट P। सो मैंने माना जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट और इस पॉइंट का, दैट इज़ R। ओके, एंड सिंस द डायरेक्शन इज वेरिंग, सो लेट मी डिनोट दिस विद R वेक्टर। ओके, और मैंने ये मान लिया कि भाई जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये R वेक्टर और ये एलिमेंट जिसकी लेंथ है बच्चों DL मतलब एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट। ओके, इस पूरी वायर का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, तो मैं इसको DL मान लिया है। ओके, सो द एंगल बिटवीन दिस R वेक्टर एंड दिस DL वेक्टर इज थीटा। ओके, सो आई होप कि आपको इन बातों में अब कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई ये मेरे पास ये एक एलिमेंट है ए बी ऑफ अ कंडक्टर जिसकी लेंथ है DL, और हम निकालने हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड द एंगल बिटवीन DL एंड R इज थीटा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे दैट फिगर शोज अ स्मॉल एलिमेंट AB of length DL of a conductor carrying current I. Okay, full stop. The strength of the magnetic field
the strength of the magnetic field at a point P due to this small current carrying wire distance r from the element is found to be depending upon ओके ये बात आपने खुद लिखनी जो मैंने अभी बोली है वो सब आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर। सो मैंने अभी बोला कि भाई जो छोटा सा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर दैट इज DB, वो डिपेंड कर रहा है कुछ सर्टेन एलिमेंट्स पर जो बताएगा हमको बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दोज स्टेटमेंट्स। सो फॉर दैट आई एम पॉजिंग द वीडियो। डिपेंड्स ऑन, ठीक है, यहाँ से हमारी अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, दैट इज़ द टॉक ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ओके, कि भाई जो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है तो कैसे करता है, डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली। सो बच्चों, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे बायोट-सेवर्ट, ही टोल्ड अस कि जो ये करंट है, कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है DB, वो डिपेंड करता है ऑन 4 पॉइंट्स। सो दी पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट, कि भाई जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सो DB इज़ प्रोपोर्शनल टू DL। पॉइंट नंबर 2 ही सेड कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ओके, एट दी पॉइंट P, वो प्रोपोर्शनल होगी टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, थ्रू दी एलिमेंट। सो DB इज प्रोपोर्शनल टू I इज दी करंट। थर्ड थिंग ही टोल्ड अस कि भाई जो आपके पास स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, साइन थीटा का मतलब क्या है, इसको समझो एक बार। साइन थीटा का बच्चों मतलब ये है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड देन इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग हाउ, पहले होती है बच्चों 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर होती है 1। सो आप देख रहे हो कि साइन जो थीटा है वो बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन एंगल फ्रॉम 0 to 90, यानी कि अगर ये मेरा जो थीटा है ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मेरा जो पॉइंट है वो इसी एलिमेंट पर लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, ये थीटा 0 कब होगा, जब DL और R एक ही जगह पर होंगे, यानी कि जो पॉइंट P है वो यहाँ पर होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, कि अगर एक पॉइंट P है जो कि खुद उस वायर पर लाई कर रहा है, सो उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। सो आपको मालूम है कि भाई वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और साइन एट 0 इज़ 0, कि भाई अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 होने वाली है। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। सो आई होप आप समझ गए हो कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी टिल 90 डिग्री। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है DB, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स वर गिवन बाय बायोट-सेवर्ट। Now what he did to make his law, that is Biot-Savart law, he combined all those 4 terms. Okay, so हम क्या कर रहे हैं भाई, combine कर रहे हैं all the terms from 1 to 4. So combining first to 4, we get, हमें क्या मिलेगा, जो DB है वो प्रोपोर्शनल होगा पहली बात तो DL के, फिर बच्चों I के, फिर बच्चों साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R² के। सो दिस इज बायोट-सेवर्ट लॉ, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट एंड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स।
द करंट एलिमेंट एट द पॉइंट P। ओके, सो दिस वाज बायोट-सेवर्ट लॉ। आपको अच्छे से मालूम है कि अगर मेरे को ये हटाना है द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड आई हैव टू रिप्लेस दिस विद इक्वल टू, सो मैं एक कॉन्स्टेंट K लगाता हूँ। सो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस सेम इक्वेशन एज dB की वैल्यू होने वाली है बच्चों K टाइम्स IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस हमने इसको इक्वल टू और K से रिप्लेस कर दिया है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई K की वैल्यू क्या आई। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी हमारा K होता है बच्चों, इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, जो भी कांस्टेंट होता है इसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ पर से हम देखते हैं कि भाई क्या कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तब इस K की वैल्यू आती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये K क्या है। सो यहाँ पर लिख सकते हो दैट वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई K की वैल्यू क्या है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? सो द K एक्चुअली इज, जो K की वैल्यू होती है वो बराबर होती है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज इन SI यूनिट्स। ठीक है, सो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो अगर मैं आपसे पूछूं भाई K की वैल्यू क्या होगी, सो आप कह सकते हो कि K की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द K विल बी 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो आई होप दिस वैल्यू ऑफ K इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो हम चाहें तो इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी सब कुछ एज इट इज, दैट इज IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई होप कि बच्चों इस स्टेटमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और यही हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ है। ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ है इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी वेक्टर नहीं माना है। अब कई बार एग्जामिनर क्या कर रहा है एग्जामिनेशन में कि वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ को पूछ रहा है इन इट्स वेक्टर फॉर्म, कि वो हमसे कह रहा है कि भाई आई वांट दिस लॉ इन दिस वेक्टर फॉर्म, मेरे को स्केलर फॉर्म में ये नहीं चाहिए। सो वेक्टर फॉर्म भी बहुत ही सिंपल है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन आ जाएगा इस क्वांटिटी के साथ। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों वेक्टर फॉर्म। जब भी आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ो सो वेक्टर फॉर्म ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बहुत कॉमन है बायोट-सेवर्ट्स लॉ के लिए, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बट आई होप कि आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्लियर है, चाहे वो स्केलर में हो फिर वेक्टर में हो, दोनों में मतलब उसका वही होने वाला है, यही सेम मतलब होगा। ओके, सो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कि भाई I क्या है, DL क्या है, साइन थीटा क्या है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर। ओके, सो टू टेल यू दी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ, आप लिख सकते हो कि दैट सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो I रहेगा I ही। DL वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने देखा होगा, सो DL वेक्टर इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इट इज द मैग्नीट्यूड, ओके, नॉट द वेक्टर, R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन होगा बच्चों जो इसका डायरेक्शन है, दैट इज जो R वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज R यूनिट कैप। ओके, यही तो होगा, ध्यान से देखो एक बार, ये जो वेक्टर थे हमने वेक्टर में चेंज कर दिया, दिस वाज द मैग्नीट्यूड, सो आई टुक इट एज मैग्नीट्यूड, एंड दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ R। आप ध्यान से देखो, लेट मी शो यू द फिगर। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन क्या होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड का, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा, सो आई टुक द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर R। ओके,
आपको अच्छे से मालूम है एक बात कि भाई आर वेक्टर होता क्या है, मतलब किसी का वेक्टर क्या होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पहला क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और दूसरा क्या, आर का यूनिट वेक्टर। ओके, सो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, दैट इज आपके पास यहाँ पर आर कैप है। सो बच्चों आर कैप की वैल्यू क्या है, यहाँ से आर कैप की वैल्यू आप लिख सकते हो एज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हैं ना। सो अब सिंपली क्या करना होता है एग्जाम के अंदर, आपने इस टर्म को इससे रिप्लेस करना होता है, दैट्स इट। वही आपका वेक्टर फॉर्म होगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। ओके, सो लेट्स डू इट कि भाई डी बी वेक्टर क्या होगा इस बारी, यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर। नाउ एक बात को ध्यान देना, बस एक बात को ध्यान देना कि बच्चों ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इट्स ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। सो अब इसको इससे कंपेयर करके देखो एक बार, ए बी साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर होता है ना। सो आई कैन राइट दिस साइन थीटा एज डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, और ध्यान से देखो नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो यहाँ पर होगा इनटू आर। सो आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा बच्चों, आर क्यूब हो जाएगा। दिस विल चेंज इनटू आर क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Biot-Savart's law, that dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I into dl vector cross r vector upon r cube। ठीक है, आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा मेथड से, बट इससे भी एक सिंपल मेथड है जिससे आप वेक्टर फॉर्म को निकाल सकते हो। मेथड क्या है, ओके, दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग। ठीक है, इसको तो मैं चाहूँगा कि आप भूल जाओ, एक और अच्छी मेथड है उस पर ध्यान दो। ओके, द सेकेंड मेथड इज वेरी वेरी सिंपल कि हमने देखा कि भाई डी बी क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, इसको आर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, डी बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मैंने आर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो एक आर यहाँ आ गया, एक आर यहाँ आ गया, सो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। फाइन, अब इस चीज़ को कंपेयर करो इस चीज़ को इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो इसको कि भाई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, समझ रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं कि मैं इस ए बी साइन थीटा को रिप्लेस कर दूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। सो मेरे पास होगा भाई डी बी वेक्टर की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। This is the vector form of Biot-Savart's law. So this is a simple understanding, और इस अंडरस्टैंडिंग से आप एग्जाम के अंदर भी इसको डिराइव कर सकते हो। एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपने कैसे निकाला वेक्टर फॉर्म, वो पूछता है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म। सो डिस्पाइट ऑफ लर्निंग दिस वेक्टर फॉर्म, आप क्या कर सकते हो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, और फिर इसको रिलेट कर लो इस वाले फॉर्मूले से, देन यू कैन सिंपली राइट दिस वेक्टर फॉर्म। सो आई होप दिस वेक्टर फॉर्म इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑफ Biot-Savart's law। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे इससे कम समझते हैं और इससे ज़्यादा समझते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इससे ही समझने की कोशिश करो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न बाय दिस टेक्निक। सो आई होप दिस Biot-Savart's law इज़ क्लियर टू यू। नाउ वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लॉ कि भाई डायरेक्शन क्या होगा इस बारी मैग्नेटिक फील्ड का एट द पॉइंट पी। सो फॉर दैट लेट मी मूव टू द डायग्राम। सो आई एम आस्किंग यू कि भाई इस पॉइंट पी पर डायरेक्शन क्या होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का, दिस वाज माय क्वेश्चन। सो डायरेक्शन निकालना आपने इसी वीडियो में सीखा है कि हम निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। सो आप क्या करोगे, दिस इज़ योर करंट एलिमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड्स। सो आप अपने थंब को मानते हो डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मैंने माना कि मैंने अपना ये वायर हाथ में होल्ड कर रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
सो दिस इज़ योर राइट हैंड। सो आप राइट हैंड को ऐसे रखो, सो आप फिंगर के कर्व्स देखो, फिंगर के कर्व्स देखो, सो इट इज़ इनवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स एंड जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट पी। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट, ओके। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। आप ध्यान से देखो, जो कर्ल्स है मेरे फिंगर के वो अंदर जा रहे हैं पेपर के। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। और अगर आपको ये दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो आप उसको डिनोट करते हो क्रॉस से, ओके। व्हेन योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर देन द डायरेक्शन इज शोन बाय द क्रॉस साइन, वेयर एज व्हेन यू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के बाहर आ रही है, तो आप उसको शो करते हो बाय डॉट साइन, बाय द डॉट साइन। इसको याद रखने का तरीका बताऊँ आपको हम, तो याद रखने का तरीका बच्चों ये है कि यू माइट हैव सीन एन एरो। एक एरो किस तरह से होती है, इस तरह से होती है एक एरो। सो अगर आप एरो को सामने से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखाई देगा, ओके। अगर मैं एरो को ऐसे सीधा रखूँगा आपके सामने ऊपर की तरफ आता हुआ, ऊपर की तरफ आता हुआ, तो आपको क्या दिखेगी, टिप दिखेगी ये। सो दैट मीन्स कि आपकी जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, ओके, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। और अगर मैं इस एरो को नीचे की तरफ रखूँ, दैट इज जो इसका माउथ है वो इनटू द पेपर रखूँ, सो आपको दिखेगी पीछे की टिप जो कि होगी ये क्रॉस डायरेक्शन में। सो दिस विल शो कि एरो क्या है, एरो इज गोइंग इनटू द पेपर, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहाँ है, वो भी इनटू द पेपर है। सो यहाँ पर हमने चेक किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द पेपर, सो देयरफॉर दिस वाज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनटू द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट P. So I hope this all information about Biot-Savart's law is clear to you, and the magnetic field at any point on the same current conductor due to the same current carrying conductor will be zero. क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा जीरो होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, I had told it to you previously also, again I am revising क्योंकि एग्जामिनर इसको बार बार पूछ रहा है। So that's all for today's video. Thank you very much.